Hello everyone, hope you all are fine. Today we have lecture number 12. In this lecture we will cover what is abstract class. So in this lecture the major topics are inheritance. We will repeat inheritance concept here in this lecture, and then we will cover what is abstract method and what are abstract classes. So what is inheritance? Inheritance is a programming technique that is used to reuse an existing class to create a new class. The existing class that is reused to create a new class is known as superclass, base class, or parent class. The class that inherits the properties and functions of existing class is known as subclass, derived class, or child class. The child class inherits all the behaviors of the parent class. Inheritance is one of the most powerful features of object-oriented programming. The basic principle of inheritance is that each subclass shares common properties with the superclass. The child class inherits all capabilities of parent class and can add its own capabilities too. In C#, the parent class of all classes is object class by default. In inheritance, we implement is a relationship. Multiple inheritance is not possible in C#. What is abstract method? A type of function that has no body is known as abstract method. ऐसा फंक्शन जिसकी कोई बॉडी ना हो, मतलब एक है एम्प्टी बॉडी, एक है कोई बॉडी ही ना हो, ऐसा फंक्शन जिसकी बॉडी ना हो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाता है. मतलब ऐसा फंक्शन जिसकी ओपन बॉडी ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस नहीं होता वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाता है. A function can be declared abstract function by adding two things. A keyword abstract at the start of function declaration. Function declaration में हम abstract कीवर्ड ऐड करते हैं. मतलब abstract function हम किस तरह बना सकते हैं, किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं. abstract function हम अगर हम एक किसी फंक्शन में टू थिंग्स ऐड करें तो वो abstract function बन जाता है. एक है abstract कीवर्ड, एक है सेमीकोलन. द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन. तो वो ऐसा फंक्शन जिसमें कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट हो और इसकी कोई बॉडी ना हो बल्कि फंक्शन डिक्लेरेशन के एंड में सेमीकोलन हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस आर यूज्ड इन द क्लासेस विच आर नॉट यूज्ड डायरेक्टली. बेस क्लास में अगर हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाएं तो उसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. मतलब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. मतलब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को हम कॉल नहीं कर सकते. The user can inherit the class and then override the abstract function in the child class. तो जो बेस क्लास है उसमें abstract मेथड है. जो क्लास इस बेस क्लास से इनहेरिट करता है वो इसी abstract मेथड को ओवरराइड करता है. मतलब इस abstract मेथड को ओवरराइड करके बॉडी प्रोवाइड करता है चाइल्ड क्लास में. So what is abstract class? A type of class that contains at least one abstract function is called abstract class. ऐसा क्लास जिसमें at least one abstract function हो तो वो abstract class कहलाता है. क्लास में हम डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं, मेंबर फंक्शंस बनाते हैं. अगर मेंबर फंक्शन में से at least one फंक्शन abstract फंक्शन हो तो वो क्लास आपने मस्ट abstract डिक्लेयर करना होगा वरना एरर मिलेगा. An abstract class cannot be used directly. Abstract class को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. मतलब क्या कि हम इसके ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. It means that no object of abstract class can be created. Abstract class का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता. अगर किसी क्लास में एटलीस्ट वन abstract मेथड हो वो आपने मस्ट abstract क्लास डिक्लेयर करना है. अगर abstract क्लास हो तो उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. However, a child class can inherit abstract class and use it by overriding it abstract functions. लेकिन अगर कोई क्लास इससे इनहेरिट कर ले, इस abstract क्लास से इनहेरिट कर ले, वो मस्ट abstract फंक्शन की बॉडी को ओवरराइड कर लेगा और तब हम इस ऑब्जेक्ट के साथ वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. The child class also becomes an abstract class if any of the abstract function is not overridden in child class. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेरेंट क्लास में 5 एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हैं, आपने एक चाइल्ड क्लास इसे डिराइव किया और 4 एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को ओवरराइड किया, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रह गया तो वो चाइल्ड भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा.
मतलब पेरेंट क्लास में जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, हर चाइल्ड क्लास ने मस्ट उस 5 एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को ओवरराइड करना है। अगर एक भी रह गया तो वो चाइल्ड भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। एक से एग्जाम्पल है प्रोग्राम, लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 3 तक क्लियर है। लाइन नंबर 4 पे हमने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर किया है। क्लास है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एम्प्लॉय, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों डिक्लेयर किया है? क्योंकि इस हावरली एम्प्लॉय में एक मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इस हावर एम्प्लॉय में 2 प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम, प्रोटेक्टेड इंट आवर्स। ये 2 प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। लाइन नंबर 8, इसमें एक इनपुट फंक्शन है पब्लिक वाइड इनपुट। कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर योर नेम, नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर योर वर्किंग आवर्स, आवर्स इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। इसमें इनपुट फंक्शन में हम क्या करते हैं, यूज़र से वैल्यू लेते हैं। इस एम्प्लॉय जो हावरली एम्प्लॉय हैं कि आपका नाम क्या है, आपके कितने आवर्स बनते हैं, आपने कितने वर्किंग आवर्स है आपने, तो वो हम आवर्स में स्टोर करते हैं। अच्छा, इस एम्प्लॉय क्लास का क्या मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो आवरली लिहाज से हम पेड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर पेड करते हैं 500। कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको 1 आवर पेड करते हैं 800। तो आवरली जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये क्लास बनाया है। अच्छा, लाइन नंबर 16 पे देखिए, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता क्या है? ऐसा फंक्शन जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, हम टू थिंग्स ऐड करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है। एक कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट, एक एट द एंड सेमीकोलन। किस तरह? लाइन नंबर 16 पे देखिए, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड कैलकुलेट पेमेंट सेमीकोलन। इसकी कोई ओपन ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस नहीं है, मतलब एम्प्टी बॉडी है, कोई बॉडी इसकी नहीं है। तो ये लाइन नंबर 16 पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन है। ये इसमें एटलीस्ट 1 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसी वजह से मैंने इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया था। लाइन नंबर 4 पे एक अकाउंटेंट क्लास में बना रहा हूँ, पब्लिक क्लास अकाउंटेंट इनहेरिटेड हावरली एम्प्लॉय। जो हावरली एम्प्लॉय क्लास हमने पहले बनाया उसे हम इनहेरिट कर रहे हैं। क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट हैं तो इस अकाउंटेंट पे लाजिम है कि आपने मस्ट उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना होगा, वरना एरर मिलेगा। पब्लिक ओवरराइड वाइड कैलकुलेट पेमेंट, यही कैलकुलेट पेमेंट उधर हावरली एम्प्लॉय में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, इधर हमने बॉडी प्रोवाइड किया, मतलब ओवरराइड किया। इससे पहले हम जब फंक्शन ओवरराइड करते थे तो हम कीवर्ड न्यू यूज़ करते थे। न्यू कीवर्ड जब हम चाइल्ड क्लास में देखते थे तो इसे पता चलता था कि इसी नाम के साथ ये वाला फंक्शन पेरेंट क्लास में भी मौजूद है, जो कि हम चाइल्ड क्लास में इस फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। इस वजह से हमने कीवर्ड न्यू लिखा था। इधर कीवर्ड ओवरराइड लिखा है, पब्लिक ओवरराइड वाइड कैलकुलेट पेमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जब आप ओवरराइड देखिए चाइल्ड क्लास में फंक्शन के डिक्लेरेशन में, तो आप ये देखिए फंक्शन की सिग्नेचर में कीवर्ड ओवरराइड है, तो इससे ये पता चलता है कि इसी नाम के साथ पेरेंट क्लास में या तो वर्चुअल फंक्शन है या एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो कि हमने इधर ओवरराइड किया है। तो अच्छा, कैलकुलेट पेमेंट में हमने ओवरराइड किया है कंसोल डॉट राइट लाइन योर टोटल पेमेंट इज़ 500 मल्टीप्लाइड बाई आवर्स। ये आवर्स इस अकाउंटेंट क्लास में नहीं है, ये आवरली एम्प्लॉय मतलब पेरेंट क्लास में डिफाइन है। क्योंकि हमने प्रोटेक्टेड लिखा था तो ये इनहेरिट हो चुका है इस चाइल्ड क्लास में। अगर आपने प्राइवेट लिखा हो तो ये आवर्स इधर एक्सेस आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एम्प्लॉय क्लास में आवर्स को प्रोटेक्टेड लिखा था तो वो इधर इनहेरिट हो गया है, हम यूज़ कर सकते हैं। इसी कंटेंट का पर आवर प्राइस 500 है, तो जितने और इसने काम किया है वो 500 से हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब इधर जो आवरली एम्प्लॉय क्लास में है, वापस एक स्लाइड बैक, ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड कैलकुलेट पेमेंट हम तो कंक्रीट भी डिफाइन कर सकते थे, ये हमने एब्स्ट्रैक्ट क्यों डिफाइन किया है ये मेथड?
ये जो आप कैलकुलेट पेमेंट वाली मेथड को देखते हैं, तो इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया है? इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट इस वजह से बनाया है क्योंकि आवरली एम्प्लॉय हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक क्लास देख लिया अकाउंटेंट, जो कि इसके प्राइस 500 थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर क्लास लेते हैं जो कि लेक्चरर होता है, उसकी पेमेंट मेथड फॉर एग्ज़ाम्पल 800 या 1000 पर आवर है। एक प्रोफेसर है जिसकी 1500 पर आवर है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि आवरली एम्प्लॉय में हम किस एम्प्लॉय का ये पॉइंट कर रहे हैं, किस एम्प्लॉय का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इस वजह से हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया कि ये इसकी बॉडी एम्प्टी है, हम इसकी बॉडी अब प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये अकाउंटेंट है, ये आवरली एम्प्लॉय, ये प्रोफेसर हैं, ये टीचर हैं, ये लेक्चरर हैं, ये कौन है। अब हमने स्पेसिफिकली अकाउंटेंट को इनहेरिट किया, तो अकाउंटेंट का हमें पता है कि 500 है। अब अगर लेक्चरर को इनहेरिट करना चाहे तो हमें पता है 1000 है। अगर हम प्रोफेसर को करना चाहें तो हमें पता है 1 आवर 1500 है। तो हम बॉडी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आवरली एम्प्लॉय जनरल हैं, हम इसको बॉडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया। ये मेन क्लास है, लाइन नंबर 4 पे क्लास प्रोग्राम है, इसमें मेन फंक्शन है, इस वजह से ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया है अकाउंटेंट क्लास का। क्योंकि आवरली एम्प्लॉय ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अकाउंटेंट ये इनहेरिटेड है आवरली एम्प्लॉय क्लास से, और ये चाइल्ड क्लास है तो इसका, और एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो इसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अकाउंटेंट obj इज इक्वल टू न्यू अकाउंटेंट ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, हम यूज़र से इनपुट लेंगे मतलब नेम और आवर्स, और ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट पेमेंट, ये अकाउंटेंट का कैलकुलेट पेमेंट कॉल हो जाएगा। तो हमें आउटपुट शो करेगा। अगर आपने 8 इंटर किया है तो 4000 होंगे, क्योंकि 500 हमने रेट लगाया था। तो इसका अगर आप आउटपुट देखें तो ये होगा, इंटर यूर नेम अहमद, इंटर यूर वर्किंग आवर्स 3, तो हमने 500 रेट लगाया था, तो यूर टोटल पेमेंट इज़ 1500, ये आ गया। ये था आज का लेक्चर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरफेसेस और एक्सेप्शन हैंडल करेंगे और इसके बाद GUI। अगर इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कशन फोरम में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।